Hi students, let us continue the story The Enemy written by Paul Asbach. Today we will do the third part, but before we start the third part, let's revise summary of the previous part. In the second part of the story, we read that Dr. Sado and Hannah rushed for the help of the man flung to the shore near their house. They thought that it would have been a fisherman, but when they reached the man, they found that he was a white man, meaning thereby that he was the enemy, but he was wounded. सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि जब हाना और साडो दोनों ही देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति बहता हुआ उनके घर के पास आया है सागर की लहरों से, वो उसके पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई मछुआरा होगा। जब उसके पास जाते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि तो कोई वाइट मैन है, यानी कि कोई अमेरिकन है। उसका चेहरा मोड़ करके वो देखते हैं, परंतु वो बहुत बुरी तरह से घायल था, जबकि था उनका शत्रु। उन्हें इस बात पर आक्रोश भी था। लेट्स रीड द थर्ड पार्ट. What did they do thereafter? Dear students, the third part of the story would start from page number 28 by sentence, "What is he?" Hannah whispered. And this part would end on page number 30 with the phrase, "A man is living or dead." That's it, the story. "What is he?" Hannah whispered. "There is something about him that looks American," Sado said. He took up the battered cap. "Yes, they're almost gone," was the fantastic sailor. He said, "From an American warship." He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. हाना हल्के से कहती है कि कौन है ये? ऐसा लगता है कि कोई अमेरिकन है, सैडो ने कहा। उसने उसकी फटी हुई टोपी को हटाया और उसमें से जो अक्षर लिखे थे उस टोपी के ऊपर वो लगभग मिट चुके थे, फेंट हो चुके थे। उसमें लिखा था ए सेलर, यानी एक नाविक। और उसने कहा, सैडो कहता है कि ये किसी अमेरिकन वॉरशिप का मतलब है युद्धपोत, जंगी जहाज़, कि किसी अमेरिका के जंगी जहाज़ का भागा हुआ सैनिक है। उसमें लिखा था यूएस नेवी, और अब स्पष्ट हो गया था ये कोई युद्ध का कैदी है या युद्ध का भगोड़ा है। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded in the back, Sado agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" "If I'm able, are you?" Sado asked. हाना ने सॉफ्टली कहा कि कोई इसका मतलब भगोड़ा है, तभी इसकी घाव लगा है, इसी गोली लगी है। सैडो कहता बिल्कुल भगोड़ा है, उस सहमत होता है क्योंकि इसकी गोली भी पीछे लगी है। दोनों थोड़ी देर के लिए संकोच करते हैं। फिर हाना एक संकल्प के साथ कहती है कि आओ, क्या हम दोनों इसे सागर में फेंकने में समर्थ हैं? सैडो कहता है, अगर मैं समर्थ हूँ, क्या तुम भी समर्थ हो? तुम भी फेंक सकती हो। "No," Hannah said, "but if you can do it alone." Sado hesitated again. "The strange thing is," he said, "that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He's my enemy. All Americans are my enemy. And he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded." हाना ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं फेंक सकती, पर अगर तुम अकेले फेंक सकते हो तो इसे वापस सागर में फेंक दो। साडो थोड़ा संकोच करता है और फिर कहता है, बहुत अजीब सी चीज़ है। अगर ये कोई व्यक्ति पूरा होता, संपूर्ण होता, तो निश्चित तौर से मैंने इसे पुलिस को बिना किसी मुश्किल के दे दिया होता। मैं इनकी परवाह नहीं करता क्योंकि मेरा शत्रु है और सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं। देखा नहीं, ये भले ही एक साधारण व्यक्ति है, परंतु इसका चेहरा बहुत मूर्खों वाला लगता है। परंतु ये एक जख्मी है, इसलिए आगे कुछ कहना चाहता है, डॉट डॉट लगे हैं, पर कहता नहीं है। "You also cannot throw him back to the sea," Hannah said. "Then there is only one thing to do. We must carry him into the house." "But the servants?" Sado inquired. अब अगर तुम भी इसे, साना कहती है कि अगर तुम भी इसे पानी में वापस नहीं फेंक सकते तो एक ही बात हो सकती है, हम इसे अपने घर ले जाते हैं। सैडो ने पूछा, नौकरों का क्या होगा? अगर नौकर बता देंगे या उनको पता चल जाएगा? "We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must. Sado, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war." Certainly, Sado agreed. "I would not think of doing anything else." उन्हें हम साधारण तौर से साफ साफ बता देंगे, हाना कहती है, कि हम इसे वापस पुलिस को देने वाले हैं। क्यों सैडो? वास्तविकता हम देने वाले हैं ना, क्योंकि हमें तुम्हारे अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम सबके सब खतरे में पड़ सकते हैं अगर हमने इस युद्ध के कैदी को अपनी सेना को नहीं सौंपा।
शैडो सहमत होता है, कहता है निश्चित तौर से बिल्कुल हमें देना चाहिए, मैं भी इसके सिवा और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यही सोच रहा था कि हम इसे वापस पुलिस को दे देंगे। The agreed. Together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time, until it is only feathers and skeleton. So his arms hanging, they carried him up and the steps and into the slide door of the house. This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. अब दोनों क्योंकि सहमत हो चुके थे कि इसे घर ही ले जाना होगा, इसलिए दोनों ने उसे उठाया। ये इतना हल्का हो चुका था जैसे कोई मुर्गा हो जो काफ़ी दिनों से भूखा हो और जिसमें सिर्फ पंख और हड्डियां ही बची हों। इसकी बाजू लटकी हुई थी। इन दोनों ने उसे उठाया अपने कदमों से उठाते हुए और साइड वाले कमरे में, घर के साइड वाले कमरे में ले गए, जिसका रास्ता नीचे की ओर जाता था और नीचे जाकर के एक और खाली बेडरूम था जहाँ वो इसे ले गए। It had been the bedroom of Sadhu's father, and since his death it had been not used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. ये डॉक्टर सैडो के पापा का बेडरूम था, पर जब उनका देहांत हो गया उसके बाद ये खाली था। उन्होंने इसे नीचे लेटाया, पर उसके नीचे बहुत मोटा, थिकली का मतलब मोटा, बहुत मोटी मैट्स जानते हैं आप, फर्श जो होता है, बहुत मोटा फर्श बिछा तो उसके ऊपर इसे लेटा दिया। इस कमरे में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर शुद्ध जापान की थी, क्योंकि डॉक्टर सैडो के फादर वो जापान की चीज़ों के सिवा किसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, चाहे वो कुर्सी हो या विदेशी बेड, वो किसी का भी इस्तेमाल, इसलिए उससे खुश करने के लिए इन्होंने सारी की सारी चीज़ें इसमें जापान की रखी थी। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. हाना कबोर्ड की अलमीरा की ओर जाती है, उसे खोलती है उसके दरवाजे को और वहाँ से एक बहुत नाजुक सा सॉफ्ट सा गद्दा निकालती है, परंतु थोड़ा संकोच करती है क्योंकि बहुत ही उसका जो कवर था फूलों वाला कवर था और बिल्कुल शुद्ध श्वेत वाइट सिल्क का वो कवर था, तो संकोच होता है कि इस गंदे व्यक्ति के पास इस गद्दे को मैं कैसे बिछाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट करती है। He's so dirty, she murmured in distress. Yes, he had better be washed, Shadow agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. I cannot be here for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Umi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. वो कहती है कि बहुत हताश, वो कहती है कि बहुत गंदा है। सैडो ने कहा हाँ पहले हमें इसे धोना होगा, और सैडो कहता है कि अगर तुम जाकर के एक बार पानी लेके आओ तो मैं इसे साफ़ कर सकता हूँ, परंतु हाना कहती है कि मैं इसे तुम्हें नहीं छूने दूंगी, हम नौकर को कह देंगे नौकरी से धो लेंगे। मैं जाकर के यूमी उनके घर की नौकरानी जो बच्चों की देखरेख करती आया है कि मुझसे कह देती हूँ थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ करके वो यहाँ आकर इसे धो लेगी, ऐसा हाना कहती है। सैडो कंसिडर्ड अ मोमेंट। लेट इट बी सो, he agreed. You tell Yumi and we'll tell the others. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. सैडो ने थोड़ा सा चिंतन किया और कहता है ठीक है, सहमत होते, कहता है ठीक है ऐसे ही करो, यूमी को बता दो, आप जाओ यूमी को बता दो और बाकी नौकरों को मैं बता दूंगा। परंतु उसी वक्त उस व्यक्ति के जो एनिमी था, वो जो सोल्जर पकड़ के लाए थे, उसका जो अनकॉन्शियस चेहरा था उसके ऊपर बहुत अजीब सा पूरे चेहरे पे संपूर्ण एक झालर सा छा रहा था, एक चुप्पी सी छाई थी, इसलिए स्तूप होता कूब ऐसे पयामज मुड़ना, इसलिए डॉक्टर थोड़ा सा नीचे झुक जाता है और उसके पल्स को, उसकी नाड़ी को देखता है। वो उसकी नाड़ियाँ चल रही थी परंतु बहुत धीमी चल रही थी। He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. He will die unless he is operated on, Sado said, considering the question is whether he will not die anyway. He put, उसने उस व्यक्ति की छाती पे हाथ रखा, अभी उसका दिल भी धड़क रहा था कि अगर इसका जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर जाएगा, सैडो ने कहा थोड़ा चिंतन करते हुए। द क्वेश्चन इज, और अब कहते प्रश्न होता है कि ही विल नॉट लाई अलाइव एनीवे, कहते हैं कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया तो क्या तब नहीं मरेगा ये, कि ऑपरेशन के वक्त भी मर सकता है। और वैसे भी हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम बट इफ ही शुड लिव, कहते हैं हाँ इसे बचाने की कोशिश भी मत करना अगर ये खुद ही बचना चाहता हो। बट इफ ही शुड डाई, सैडो रिप्लाइड, पर अगर ये मरना चाहता हो तो ही स्टूड गैजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस, उस व्यक्ति की तरफ एक यहाँ से देखता है, पर ये व्यक्ति तो मरने वाला है। उसने ये कहा, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटेलिटी और he would have been dead by now.
But then he was very young, perhaps not yet 25. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Shadow said. शैडो कहता है कि इस व्यक्ति की बहुत ही वाइटलिटी होता है, प्राण, जान, कि इसमें बहुत ही असाधारण जान है जो अभी तक ये जिंदा है। परंतु दूसरी बात ये भी है कि बहुत नौजवान है, शायद मुश्किल से 25 साल का होगा। हाना ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है कि ऑपरेशन करते हुए मर सकता है? मैंने कहा हाँ, कि ये मर सकता है। शैडो कहता है हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुल्ली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर शैडो टर्न्ड अवे. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. हाना को थोड़ा सा संदेह हुआ क्योंकि वो जानती थी कि उसके हस्बैंड उसे बचा ही लेंगे जब शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया। और शैडो कहता कि एनी रेट किसी भी तरह से हमें इसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमें इसे धोना होगा, इसे वॉश करना होगा। वो जल्दी से बाहर जाता है कमरे के और हाना भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। She did not wish to be left. She did not wish to be alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was, her enemy, a menace, living or dead. She did not wish to be. अब वो भी नहीं चाहती थी कि इस वाइट मैन के साथ अकेली रहे हस्बैंड के बिना, क्योंकि जब से वो अमेरिका छोड़ करके आई थी उसके बाद शायद ये पहला मौका था जब वो किसी वाइट अमेरिकन के साथ पहली बार रह रही थी। और वो उन किसी भी व्यक्ति को याद करना, अमेरिका के उन किसी भी व्यक्ति को याद करना नहीं चाहती थी जिन्हें वो वहाँ पे जानती थी, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति सारे उनके लिए शत्रु थे। मैनस का मतलब था खतरा, लिविंग और डेथ, कि ये व्यक्ति जिंदा भी उनके लिए खतरा था और मरा हुआ भी, मृत्यु उनके लिए खतरा था, ऐसा उसे लग रहा था। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। टुमारो वी वुड बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी। काइंडली गो थ्रू इट एंड द असाइनमेंट वट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द होमवर्क सेक्शन, काइंडली डू दैट एक्सरसाइज। नीचे कार्यपत्रक होगा, उसे आप प्लीज़ जरूर देखें और कार्यपत्रक के अनुसार अपने आंसर्स को करते रहें।